In which of following cases the frictional force acting on the block is in direction of motion of block? Block sliding on a table. Block at rest on table, but table sliding on cloth. Block and table both at rest. These, none of these. These, none of these. Question number 2. On a surface of lesser mu, one can easily walk with small steps. B, large steps. C, any steps. Cannot be said. Cannot be said. Question number 3. Two blocks of masses m and 2n are thrown on a rough floor. With velocities in ratio 3:5, assuming same coefficient of friction for both their stopping distances. Will be in ratio A 5:3, B 3:10, C 5:6, D 9:25। ऐसे करके आपको 3 क्वेश्चन में दिया। आपको आंसर नहीं बताना है, खाली इसका आंसर ABCD करके लिख के रखना है। मैं फोटो भेज दूंगा।
A book of mass m is pressed by two hands as shown. Book is at rest. Book is at rest. If coefficient of friction is same at each hand, find pressing force by each hand. Answers: mg by mu, mu mg by 2, mg by 2 mu, none. Question number 5. In figure shown, F changes with time as F is equal to 4t. Force starts at t equal to 0. The block starts moving. At t equal to what? ऑप्शन दिया है mg/4, block starts moving at t equal to what? ऑप्शन दिया है mg/4, mg/4 mu, mu mg/4, C है ये, D is none। कब ये चलना शुरू करेगा? क्वेश्चन नंबर 6।
coefficient of friction on a surface on an inclined surface is 1। ठीक है। इंक्लिनेशन of plane to horizontal is theta। ठीक है। For what value of theta the frictional force on block will be mg sin theta, given m is the mass of block, आंसर दिया गया है 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, नन। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन अभी दिया हूं, आप लोग इसको करो। क्वेश्चन नंबर 7, a car can have maximum velocity v0 ठीक है। It starts from one point and stops at a distance s in minimum time, stops at a distance in minimum time। ठीक है। stops at another point, at another point following VT diagram as shown। Following VT diagram is shown if coefficient of friction
is mu. Find minimum value of t. T is the stopping time. You clearly see आंसर दिया है। V0 by mu g to V0 by mu g, V0 by 2 mu g, none. Question number 8. The coefficient of friction, the value of mu is 1 by root 3. Find minimum value of F to hold the block in equilibrium. mg sin 20, mu mg cos 20, mg sin 20 minus mu mg cos 20, 0. Question number 9. If 3 kg is being pulled with acceleration 2 meter per second square, find value of F. ऑप्शन दिया गया है। Newton, 52 Newton, 45 Newton, none. D is none. D is none. फिर से 3 क्वेश्चन दिया गया है, करिए। value of E
value of mu everywhere becomes infinite, then we cannot walk, climb a rope, jump vertically up, and write on copy. Question number 11. A man standing vertically, a man is standing vertically and pushing a wall horizontally with 200 Newton force. 200 Newton force. If the man is at rest, then frictional force on his feet is 200 Newton towards wall. B, less than 200 Newton towards wall. More than 200 Newton away from wall. D, data insufficient. Question number 12. The man is
and running. 8 acceleration a0, acceleration a0. The frictional force on feet of man is a mu mg by 2 plus ma b0 d, option B. Three mu mg by 2 plus three mu mg by 2 प्लस, और इसको इसे लिखते हैं 3/2 mu mg प्लस mu mg by 2 प्लस 3/2 ma0 ठीक है, d 3/2 m g प्लस a0। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? दिया है सॉल्यूशंस। नंबर 6 क्या दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज 1, दिया है कि म्यू इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज you know is theta 0, and what is theta 0? tan inverse of 1, that is 45 डिग्री। मतलब एंगल अगर 45 डिग्री या उससे ज्यादा होगा तो कोई बॉडी फिसल के नीचे आने लगेगा। सो व्हेन इंक्लिनेशन is less than 45 degree, less than 45 degree, the block will be at rest and frictional force will be equal to applied force, that is कितना? mg sin थीटा। Hence आंसर इज, जो 45 डिग्री से कम वाला आंसर है,
आंसर इज 30 डिग्री। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कोई नहीं कर पाया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक, 6, 8, 9, 10, 11, 12 यही था आपका डाउट। 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कोई एक ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। एक ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या दिया है? दिया है ये 20 डिग्री, म्यू कितना 1/√3। अच्छा, तो सॉल्यूशन 8 का सोचो। हियर म्यू इज 1/√3, सो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा? थीटा 0। एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू। अच्छा, tan थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा 0 म्यू इज 1/√3, मतलब थीटा 0 कितना है? 30 डिग्री। हियर थीटा इज 20 डिग्री व्हिच इज लेस देन 30 डिग्री। क्या ये ब्लॉक फिसलेगा? ब्लॉक इज ऑलरेडी एट रेस्ट। ये ब्लॉक तो ऐसे ही रेस्ट में है, ऑलरेडी एट रेस्ट, सो नो फोर्स रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट इन इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी, द फोर्स रिक्वायर्ड इज 0। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डाउट है, ये था सॉल्यूशन 8। सॉल्यूशन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक 3 kg का है। नहीं, आप 3 kg के ब्लॉक को खींच रहे हो, नीचे झूल रहा है 2 kg। तो चलो तो देखते हैं, थोड़ा ये फिगर को ढंग से बनाते हैं। ये है हमारा ब्लॉक, ये हो गया। ध्यान से देखो, वही फिगर है, मैं कुछ दूसरा नहीं बना रहा हूं। अब ये चल रहा है आगे ए में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन होगा और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा और क्या होगा? एक शूडो फोर्स होगा। कितना? ये 3 kg है ना, तो 3a। अच्छा, टेंशन कितना है भाई? ये तो 2g है और नीचे की तरफ है 2a, क्योंकि ये भी तो ऊपर जा रहा है a में। पूछा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। हियर 3 body डायग्राम ऑफ 2 kg। ये 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चला? T is equal to 2g plus 2a, that is 24 के दिया है। a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, सो 24 न्यूटन। अच्छा, नाउ इफ यू सी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है। 3 kg के ऊपर ये 3 kg का है, तो यहाँ पे ये 3g है ना, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये म्यू 3g होगा और ये टेंशन है, ये 3 है। तो आप क्या कहोगे? F इज इक्वल टू 3a प्लस t प्लस 3 म्यू g। अब यहाँ पे 3a कितना है? 3 इंटू 2 प्लस t कितना है? 24 न्यूटन प्लस म्यू कितना है? 0.5, 3g हो गया 30। 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 24 इज 45 न्यूटन। सो यू नीड 45 न्यूटन ऑफ फोर्स। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे बन रहा है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 में
क्या पूछा गया है? पूछा गया है if value of mu everywhere becomes infinite then we cannot walk, we cannot climb a rope, we can jump but we cannot jump vertically up, we cannot write on a copy. अरे आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग पहले भी डिस्कशन किए, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। ये एक बहुत ही प्यारा सा दुश्मन है क्योंकि हमारा काफी मदद करता है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप चल नहीं पाओगे, जितने ज्यादा रफ होगा उतने ज्यादा जोर से चल सकते हो। सो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाने से भी आप चल सकते हो। रस्सी चढ़ने के लिए अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा हाथ फिसल जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो आप आराम से लटक जाओगे और चढ़ जाओगे। यू कैन क्लाइंब ए रोप। वर्टिकली ऊपर ऐसे जंप करने के लिए हमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं होता है, हम तो ऊपर की तरफ उछलते हैं, फ्रिक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कॉपी पे लिखते वक्त हम पेन को स्लाइड कर रहे हैं, अपना हाथ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तो कैन यू स्लाइड योर हैंड? नो, you cannot slide your hand, so you cannot write on a copy। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ if mu is infinity we cannot slide the pen on copy, कॉपी के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक है, नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है। कोई एक आदमी किसी एक ब्लॉक को पुश कर रहा है, वॉल को पुश कर रहा है, यही है वो पहलवान। ठीक है, इसके नाम कानून है और कानून के हाथ लंबे हैं। ठीक है, देखो कितना लंबा है उसका हाथ, वो ऐसा खड़ा है और वॉल को पुश कर रहा है। कितना फोर्स में पुश कर रहा है? विथ 200 न्यूटन फोर्स। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये वॉल भी उसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स दे रहा होगा, ये दे रहा है 200 तो ये भी दे रहा है 200। तो ये आदमी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब इसके पांव पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको फिसलने नहीं दे रहा है। मतलब ऑप्शन हो गया ए, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हिज फीट इज 200 न्यूटन टुवर्ड्स वॉल, इसीलिए तो रेस्ट में टुवर्ड्स वॉल। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन नंबर 12 क्या दिया? ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा। आप ध्यान से देखो क्या दिया है कि ये जो मास है m/2, इसको ये आदमी पुश कर रहा है। ठीक है, कैसे? हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है। द मैन इज पुशिंग इट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वो आदमी इसको हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है। ठीक है, पुश करते हुए आगे जा रहा है। चलिए देखते हैं हाउ आर द डिफरेंट फोर्सेस। अब ये ब्लॉक इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। आदमी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? अगर ये स्मूथ होता, ये इसको पुश करेगा तो ये भी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा, आदमी फिसल जाएगा। फिसल नहीं रहा है, मतलब आदमी को फ्रिक्शनल फोर्स बचाए रखा है। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मैन एंड हियर व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हियर? क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू एम जी बाय 2। अब यहाँ पे कितना है क्या मालूम? आदमी तो स्लाइड नहीं कर रहा है। यू मस्ट सी केयरफुली व्हेन यू आर वॉकिंग और पुशिंग और रनिंग, यू आर नॉट स्लाइडिंग। सो स्लाइड करता तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ म्यू के टर्म पे आता। अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे हाल में क्या हुआ? इस फ्रिक्शनल फोर्स की सहारे ये आदमी जिसका मास m है सब इसको लेके भाग रहा है। और क्या क्या फोर्सेस है? इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर भी एक स्यूडो फोर्स आ रहा है। कितना? ma, इसके ऊपर ma/2
है ना, m/2 इंटू ए, m/2 इंटू ए। तो सोचो, सारा फोर्स तो दिखा दिया। कंसिडरिंग मैन एंड ब्लॉक एज सिंगल सिस्टम, कंसिडरिंग मैन एंड ब्लॉक एज सिंगल सिस्टम, आप क्या कहोगे? कहोगे कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे कैसे? मूव तो कर रहा है ना एक्सीलरेशन ए में, तो क्या हुआ? हम तो सारा स्यूडो फोर्स दिखा चुके हैं। तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर को है दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी बाई 2 प्लस एम ए प्लस एम ए बाई 2। समझ में आया क्या? सो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना आ गया? म्यू एम जी बाई 2 प्लस 3m a बाई 2। ये हो गया आंसर। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी। सारा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बना दिया, देख लो।